میں سعودی عرب میں رہتی تھی۔ اماں کہتی تھی تو شادی شدہ ہے اور تیرا شوہر پاکستان میں رہتا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا اپنے شوہر کو دیکھنے کا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا نکاح ہوا تھا۔ ایک دن اچانک اماں کی شدید طبیعت خراب ہوئی تو مجھے مرنے سے پہلے میرے شوہر کا ایڈریس دے گئی۔ بولی کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا اور شوہر کو دیکھ کر مجھے بددعا مت دینا۔ میں نے اماں کی بات پر دھیان نہیں دیا اور پاکستان اپنے شوہر سے ملنے چلے گئی، اور جو ہی شوہر پر نظر پڑی تو جان نکل گئی، کیونکہ اس کی تو میں حیا ہوں، اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی اور سہارا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ سعودیہ میں رہتی تھی۔ میری عمر اس وقت 4 سال تھی جب میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا اور ہم سعودیہ میں ہی رہ گئے۔ میرے والد سعودیہ میں ملازمت کرتے تھے جب ان کی میری والدہ سے شادی ہوئی۔ پہلے تو والدہ صاحبہ پاکستان میرے دودیال یعنی اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر کچھ ہی عرصے بعد میرے والد صاحب کے گھر والوں کے اختلاف سے تنگ آ کر وہ اپنے میکے چلی گئی۔ جب یہ بات والد صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت مشکل سے انہیں اپنے پاس بلوا لیا اور پھر وہیں رہنے لگی۔ امی جان کے سعودیہ جانے پر والد صاحب کے گھر والوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، مگر پھر ان دونوں سے رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ لوگ دوبارہ پاکستان نہ جا سکے، جس کی بڑی وجہ ذرائع کی تھی۔ شادی کے شروع کے 2 سال بہت خوشحال گزرے تھے، مگر پھر والد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے وہ کام نہ کر پاتے اور اتنی رقم نہ ہو پاتی جس سے واپسی کا انتظام کر سکتے۔ وقت گزرتا گیا اور امی جی نے وہیں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ابو جی کی حالت خراب ہو رہی تھی، امی کو فکر ہونے لگی۔ امی اور ابو دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ شادی کے 5 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ بہت مشکل سے امی نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ وہ میرے لیے بھی اداس ہو گئی تھی، مگر جلد ہی خود کو سنبھالنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے میری پرورش کرنا شروع کی۔ شروع کا وقت کافی مشکل گزرا، مگر وہ ثابت قدم رہی۔ میری پڑھائی مکمل کروانا ان کی اولین ترجیح تھی۔ وہ مجھے خود پڑھاتی کہ میری پڑھائی نامکمل نہ رہے۔ میں اس وقت 15 سال ہوئی جب انہوں نے مجھے بلایا، اور جو خبر دی وہ میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ہوا آیا؟ جب کافی دیر تک میں نے جواب نہ دیا تو امی نے پوچھا۔ کچھ نہیں امی جی، میں نے کہا۔ تو پھر کیا سوچ رہی ہوں؟ امی نے مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے یہ بات مجھے اب تک کیوں نہیں بتائی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ یہی وقت ہے تمہیں بتانے کا۔ وہ بولی تو تھکن زیادہ لگی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ میں نے بات ختم کی تو وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، دیکھو حیا، میں چاہتی ہوں تمہیں وہ سب پتا ہو جس سے تم انجان ہو۔ امی نے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھی نہیں۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو حیا، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے یہ بات تمہیں بتائی ہے تاکہ تم میرے مرنے پر یہ نہ سمجھو کہ تم بے سہارا ہو۔ امی نے میرا چہرہ چومتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ میں نے دکھ سے کہا، ایک وہی تو تھیں، اگر انہیں بھی کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جی پاتی۔ ان سب کے بعد وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ اس کے بعد میں صحن میں آگے مجھے امی کی یہ باتیں یاد آنے لگی تو ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے کبھی پلٹ کر پوچھا، اور کیسا شخص تھا وہ جس سے یہ بات پتہ نہیں تھی، اور پتہ تھی تو اس نے یا اس کے خاندان نے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ عجیب کہانی تھی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، یہی سوچتی رہی کہ اس کے بعد جا کر سو گئی۔ صبح کالج گئی تو سوہا نے میری پریشانی بھانپ لی۔ کیا بات ہے حیا؟ وہ میرے پاس بیٹھی اور پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں بات بدلنا چاہتی تھی۔ دیکھو بکواس نہ کرو، پریشانی بتاؤ۔ اس نے غصے میں کہا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، جس سے سنتے وہ مجھے دیکھتی رہ گئی۔ سچ؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، وہ بے یقینی سے بولی۔ مجھے خود نہیں ہو رہا، میں نے کہا۔ اچھا چلو چھوڑو، اٹھو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر چلی گئی۔ حیا، جب تم پاکستان جاؤ تو اپنے دودیال والوں سے بھی ملنا، امی نے کھانا بناتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ کیا وہ کبھی ہم سے ملنے آئے؟ میں نے نفرت سے کہا، ایسی باتیں مت سوچا کرو۔ دیکھو آدھے سے زیادہ رشتے تو خود غرضی میں ٹوٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے کہ جب وہ یاد نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں۔ تم ایسا نہیں کرو گی، تمہارا ان کا تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ گی، انہیں مناؤ گی، امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی تھی وہ دکھی ہوں، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ تم اپنے شوہر سے ملنا، وہ بھی تو پاکستان میں ہے، وہ پیار سے بولی۔ اب تو مجھے بھی شوق ہونے لگا تھا کہ پاکستان جانے کا، اور میں چاہتی تھی کہ امی کے ساتھ جاؤ، اسی لیے سیکنڈ ٹائم جاب کرنا شروع کی تاکہ امی کو لے کر جا سکوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میری پڑھائی مکمل ہو گئی۔ مجھے وہیں بہت اچھی جاب بھی مل گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ اب جلدی سے پاکستان جا سکوں گی، لیکن امی کی طبیعت اب خراب رہنے لگی۔ دن بدن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، مجھے ہر وقت ان کی فکر لاحق رہتی۔ میں ان کی صحت کا بہت خیال رکھتی، مگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ بہت دعائیں کی، بہت اچھی جگہوں سے علاج کروایا، مگر سب بے سود۔ حیا، تم پاکستان چلی جانا، وہ مجھے ہر بار یہی تلقین کیا کرتی۔ ٹھیک ہے امی، آپ بے فکر رہیں، پلیز پریشان نہ ہو۔ میں اب انہیں تسلی دیتی کہ وہ میری بے رخی سے دکھی نہ ہوں، مگر ان کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی جو مجھے سمجھ نہ آتی۔ حیا، تم اپنے شوہر کو قبول کر لینا۔ ایک دن سوپ پلاتے ہوئے ان سے باتوں کے دوران انہوں نے کہا تو میرے ہاتھ رک گئے
वो ऐसा क्यों कह रही थी? भला कौन सी बीवी अपने शोहर को कबूल नहीं करेगी? कई दफ़ा उनसे पूछा मगर उनसे पूछ कर भी कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि वो चुप हो जाया करती या माफ़ी मांगने लगती। मुझे समझ ना आता वो मुझसे माफ़ी किस चीज़ की मांगती हैं। मुझे बहुत शौक़ था अपने शोहर से मिलने का कि मैं देख सकूं कि कौन है वो शख्स जो मेरी ज़िंदगी का हमराही है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा सिवाय नाम के। मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है। अम्मी से पूछने का सोचा और उनके कमरे में गई। अम्मी, मेरा शोहर रहता कहाँ है? मैंने उनके करीब बैठते हुए पूछा। वो मैं तुझे बता दूंगी जल्द ही। वो बात टाल गई तो मैंने भी कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। 1 महीने बाद अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ आधी रात को नर्स ने आकर कहा, आपकी वालिदा आपको बुला रही हैं। नर्स की बात सुनते ही मैं भाग कर वार्ड में गई। हया, मेरे पास आओ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलवा कर एक पर्ची थमाई। मैंने ना समझी में उन्हें देखा। ये क्या है अम्मी? मैंने पर्ची खोलते हुए देखते हुए कहा कि इस पर्ची पर कोई पता लिखा है। यूँ लगता है सालों पुराना कोई ख़त हो जिसके अल्फाज मिट रहे थे। ये तेरे ससुराल वालों का पता है, तू वहाँ चली जा। उन्होंने कहा तो मुझे बहुत रोना आया। मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। मैंने पर्ची मुट्ठी में बंद की। मेरी एक बात याद रखना हया, अपने शोहर से मिलकर मुझे बददुआ मत देना और मुझे माफ़ कर देना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और अपने अब्बा को माफ़ कर देना, तेरी मेहरबानी होगी। वो ये कहती इस दुनिया से रुखसत होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी सदमे में रही, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। 2 महीने बाद मैं संभल चुकी थी। जब कमरे में गई तो ड्राज में से वो पर्ची निकाल कर जो अम्मी ने मरते वक्त दी थी, मुझे उनकी उस दिन वाली वो बातें याद आने लगी। हया, तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम्हारा शोहर पाकिस्तान में है, वहाँ जाकर उससे मिल लेना। तेरा निकाह तेरे अब्बा की मर्जी पर हुआ था, इसीलिए उसे निभाने की कोशिश करना ताकि तेरे अब्बा का मान सलामत रहे। अम्मी की सारी बातें मुझे याद आती, रोनाने लगती। काफ़ी देर में रोती रही, फिर उठकर अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की, घर से निकल गई। पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम हो चुका था। मुझे यहाँ के अधूरे काम निपटाने थे ताकि मैं बेफिक्र होकर पाकिस्तान जाऊँ। मैं 1 हफ्ते तक यहाँ से निकल गई और पाकिस्तान पहुँचकर मैंने जब अपने ससुराल गई, घर ज़्यादा बड़ा नहीं था तो छोटा भी नहीं था। अंदर दाखिल हुई तो सामने एक औरत बैठी थी, साथ एक लड़की, दोनों गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। जब लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी, जी कौन और किससे मिलना है? अपने ही घर में ऐसा सवाल? मैंने सख्ती से बैग को पकड़ा। मैं हया हूँ, सऊदीया से आई हूँ, मैंने आहिस्ता आवाज़ से कहा तो वो औरत एकदम उठकर खड़ी हुई। हया, तुम यहाँ कब आई पाकिस्तान? वो औरत मेरे पास आते ही पूछने लगी। आज ही आई हूँ। मैं उनके सवाल का जवाब दिया, अलबत्ता वो लड़की मुझे देखती रही। अच्छा, फिर तू थक गई होगी, नूर भाभी को कमरे में ले जा ताकि आराम कर सके। उस औरत ने जल्दी से उस लड़की को कहा। भाभी? वो लड़की हैरान होकर मुझे देखने लगी, मानो कुछ गलत सुन लिया हो। हाँ भाभी, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम पहले से लेकर तो जाओ। इस बार उनके लहजे में सख्ती थी, जिस पर लड़की मुंह बसूरती मुझे लेकर एक कमरे की तरफ चलने लगी। तुम यहाँ रहोगी और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। वो लड़की जो कि मेरी नंद थी मुझे कमरे में लेकर गई और वहाँ जाकर कहा, बहुत शुक्रिया। मैंने नरमी से कहा, जबकि मुझे उस लड़की का यूं अनजान होना बुरा लगा था। मेरे कहते साथ ही वो चली गई। मैंने अपनी सोचों को झटक कर कुछ देर आराम किया और फिर फ्रेश होकर बाहर जाने का सोचने लगी। कुछ देर सोचने पर बाहर जाने का इरादा करती कमरे से निकली तो सीधा टीवी लॉन्ज में पहुंची, जहाँ वही लड़की और 2 लड़के बैठे थे, बातें कर रहे थे। मुझे वहाँ देखकर खामोश हो गए। अरे आप क्यों खड़ी हैं, आए बैठे। उनमें से एक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, वो मुझे पानी पीना है। मैंने बहाना बनाया, मैं लाती हूँ। लड़की उठकर दाईं तरफ चल पड़ी। बैठ जाए। दूसरा लड़का भी उठ खड़ा हुआ तो मैं दूसरी तरफ पर सोफे पर बैठ गई। लड़की ने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया। मेरा नाम नूर है और ये समीर भाई और हुसैन भाई हैं। हम सब 8 बहन भाई हैं। आप हमारे बड़े भाई की बीवी हैं, इस लिहाज से हम आपको भाभी कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। वो प्यार से तारुफ करवाती हुई बोली। मुझे लगा बाकी चारों भाई बहन उनसे छोटे होंगे। मैंने उसकी बात पर असबात में सर हिला दिया और खामोश हो गई। आप क्या करती हैं? लड़की काफ़ी देर की खामोशी की बात पूछने लगी। मैंने ड्रेस आर्ट और डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की है और उसी की जॉब करती हूँ, मैंने नॉर्मली जवाब दिया। कुछ देर बातों के बाद मैं वापस कमरे में आ गई। शाम को बाहर से आते शोर से मैं कमरे से निकल गई तो सामने 3 मर्द खड़े थे और एक औरत जिसकी उम्र 35 साल होगी। वो सब उस औरत जिन्होंने मुझे कमरे में भिजवाया था और जिन्हें सब अम्मा जी कहते थे, अम्मा जी से लड़ रहे थे। लो जी, आ गई महारानी, वो औरत गुस्से से बोली। मैं उनको देखती रह गई। मुझे ज़्यादा उर्दू बोले नहीं आती थी, समझ भी कुछ हद तक लेती थी। ज़्यादा मुश्किल अल्फाज समझना मेरे बस से बाहर था, इसी वजह से मैं समझ नहीं सकी। मैं कह रही हूँ अम्मा से रुखसत करें, एक मर्द बोला। मैं नासमझी से सबको देख रही थी कि आखिर क्या हो रहा था। वो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे और इतनी नफरत क्यों थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तुम कमरे में जाओ। अम्मा जी ने मुझे जाने का कहा तो मैं जल्दी से वापस कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर बातें अभी तक हो रही थी, शोर और लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी। मेरा दिल बंद होने को था मगर शायद अभी हिम्मत बहुत थी जिसकी वजह से बर्दाश्त हो रही थी वो बातें, और मैं वो बातें बर्दाश्त कर रही थी जो सुनने का कभी सोचा तक नहीं था। वो भी सुन रही थी। आधी रात तक यही सब चलता रहा। सारी रात नींद नहीं
नहीं आ सकी। दूसरी सुबह बहुत जल्द थी। मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा शोहर कहाँ है और अभी तक वो क्यों नहीं आया। मैं बैठी सोच में गर्क थी जब नूर ने दरवाजे पर दस्तक जवाब न पाकर बिना इजाजत ही अंदर आ गई। भाभी नाश्ता कर लें। उसने एक ट्रे मेरे सामने रखी। नूर, उसे जाता देखकर मैंने पुकारा था, वो रुक गई। कल रात लड़ाई मेरी वजह से हो रही थी? मेरे पूछने पर वो मेरे सामने बैठ गई। नहीं, ये तो रोज का काम है, आप बेफिक्र रहें। वो तहम्मुल से बात छुपा गई। मुझे लगा शायद मैं बोलते बोलते रुक गई। अरे नहीं यार, अच्छा छोड़ें, ये बताएं आप सऊदीया में किसके साथ रहती थी? उससे पूछा तो मुझे शिद्दत से अम्मी की याद आई। अम्मी के साथ? मैंने जब्त से कहा। अब वो कहाँ है? उससे मेरे दुखी होने पर पूछा। उनकी डेथ हो गई है, मैं कहते हुए रो पड़ी। तो मुझे चुप करवाने लगी, साथ माफी भी मांगती रही। नूर, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? मैंने पूछा तब वो उठ खड़ी हुई। मैं अब चलती हूँ, अम्मा जान इंतजार कर रही होंगी। वो कहते साथ ही गायब होगी और मैं दरवाजे को तकती रही जहाँ से वो गई थी। उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने खुद से पूछा, मगर जवाब तो मुझे भी नहीं पता था। मैं सारा दिन कमरे में रही। शाम को अम्मा जी मेरे पास आई। देखो हया, मेरे बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते, उन्होंने साफ गोई से कहा। तो मैंने चौंक कर उन्हें देखा। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और बाप मेरे क्या लगते थे? उनके सवाल पर मैंने नफी में सर हिलाया, मगर उनकी बात पर मेरा दिल एकदम बंद हुआ। मैं तुम्हारे बाप की बड़ी बहन थी और जब तुम्हारा बाप सऊदीया गया तो उसने वापसी का वादा किया था। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊँगा आपा जी, खुरम ने वादा करते हुए कहा था मुझसे। तुम जानते हो खुरम, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकती, आपा ने कहा था। मैं जानता हूँ, मगर फिक्र ना करें, लौट आऊँगा बहुत जल्द, खुरम ने आपा का हाथ पकड़ते हुए कहा और चला गया। अम्मा, आप खुरम के लिए लड़की तलाश करें, शादी हो जाएगी, वो वापस नहीं जाएगा, आपा ने अम्मा के साथ बैठते हुए उनसे कहा। बर्दाश्त था अपने भाइयों के बगैर रहना। ठीक है, देखते हैं, अम्मा ने कहा और फिर लड़कियों की तलाश होने लगी। एक लड़की पसंद आई तो उससे खुरम की शादी कर दी गई ताकि वो सऊदीया वापस ना जाए, मगर वो तो वहाँ का होकर रह गया था, इसीलिए 3 महीने बाद चला गया। उसके जाने के कुछ ही महीनों बाद हीरा ने घर में लड़ाई शुरू कर दी। कोई काम कहा जाता तो इनकार कर देती और कहती कि मेरे शोहर के पैसों पर पल रहे हैं सब, मैं क्यों काम करूं। इस तरह हर वक्त घर का माहौल खराब रहता और एक दिन वो रूठ कर मैके चली गई और न जाने उसने खुरम से क्या कहा कि वो घर वालों से नाराज हो गया और हीरा को अपने पास बुला लिया। जब घर वालों ने उसे वापस आने का कहा तो वो इनकार कर गया। हीरा ने क्या पट्टी पढ़ाई ये पता नहीं था। दिन रात मैं खुरम की वापसी के लिए दुआएं करती, उसकी मिन्नतें करती, मगर वो अनसुनी कर देता। तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया और मैं तड़पती रही। अल्लाह जानता है मैंने तुम्हारी माँ के आगे हाथ भी जोड़े थे। मैं कभी नहीं चाहती थी वो हम सबसे दूर हो जाए, मगर वो चला गया, फिर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गया। तुम्हारा मेरे बेटे से निकाह भी ऑनलाइन हुआ था। उस वक्त ये मुमकिन था, ये रिश्ता सिर्फ ज़ुबानी कलामी था। मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस रिश्ते के बारे में पूरा सच क्यों नहीं बताया। एक के बाद एक राज मेरा दिल कर रहा था कि रोने लग जाऊं। रोऊं के सब तड़प उठे, मगर वहाँ मेरे दर्द की परवाह किससे थी। मैं चुप थी, बिल्कुल खामोश, जब वो एक बार फिर बोली, जानती हो किससे हुआ तुम्हारा निकाह? देखा है उसे? उनके सवाल पर एक बार फिर मैंने नफी की तो वो मुस्कुराती। तुम्हारा निकाह मेरे सबसे बड़े बेटे से हुआ था, जो आज हो रहा है। मेरा तुम्हें मशवरा है, उससे तलाक लेकर अपना घर बसाओ। वो मुझे कहकर चली गई। पीछे मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, सांस रुक गई थी। बार बार अम्मी और अब्बा की याद आ रही थी। उन्होंने क्यों मुझे इन सब इख्तलाफात की भिड़ चढ़ाया। मैं यूं ही गुमसुम बैठी रही जब नूर अंदर आई। भाभी बाहर आ जाए, अम्मा जान बुला रही हैं, वो कहकर चलेगी। मैंने वक्त देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। फिर याद आया अम्मा ने कहा था कि उनका बेटा शाम को आएगा। मुँह हाथ धोकर बाहर निकली तो सामने सोफे पर सभी घर वाले बैठे थे। मुझे आता देखकर अम्मा जान बोली, ये है हया, खुरम की बेटी, और तुम्हारी मनकूहा। उन्होंने एक वजूद की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतना तो मुझे पता लग चुका था कि वो मेरे शोहर को ही बता रही थी। मैं उनके थोड़ा करीब गई, तभी वो पलटा। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। पैरों तले से गोया जमीन खींच ली हो किसी ने। मुंह पर हाथ रखे मैं डर से आंखें फैलाई खड़ी थी। टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी और यहीं बेहोश होकर मैं गिर गई। उसके बाद मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। करीब नूर बैठी थी, थोड़ा दूर हुसैन खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। जब समीर फाइल पढ़ रहा था मुझे होश में आता देखकर मुस्कुराया और हुसैन को आवाज़ दी। मुझे बेहोश होने से पहले का वाक़या याद आया तो अम्मी की आखिरी बात बहुत याद आई। अब मैं समझ रही थी कि उन्होंने मुझे क्यों कहा कि मैं उन्हें बदवा ना दूं। काश अम्मी आप मुझे मार देती, मगर ये जुल्म तो ना करती। मेरी नज़रों के सामने से मेरे शोहर का चेहरा घुमा तो एक बार फिर दिल कांपने लगा। 40 साल का मर्द, एक टांग टूटी हुई, वो बिल्कुल बूढ़ा आदमी लग रहा था। बाल सफ़ेद, चेहरे पर जा बजा निशान जो स्याह हो चुके थे। शुक्र है अल्लाह का आपको होश आया, हुसैन मेरे करीब खड़ा बोला। तो मैं मुस्कुरा भी न सकी। क्या अजीब खेल खेला गया था मेरे साथ, मेरे ही माँ बाप ने। आप ठीक हैं? समीर के सवाल पर मैंने उसे देखा तो वो नजरें चुरा गया। उसके बाद डॉक्टर्स की इजाज़त से मुझे वो वापस घर ले गया। मैंने मना किया मगर हुसैन बज़िद था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। फुप्पो ने मेरी तलाक करवा दी कुछ ही दिनों तक।
मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हुसैन से कर दूँ। देखो हया, जो हुआ उसे भूलना मुश्किल है, मगर मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती। वो शर्मिंदा से बोली, जैसे सबके जिम्मेदार वो हों। आप बेफिक्र रहें, मैं दोबारा सऊदीया चली जाऊंगी और वैसे रहूंगी जैसे पहली रहा करती थी। जहाँ तक रही बात अकेलेपन की, तो वो शुरू से ही बर्दाश्त करती आई हूँ। हाँ बस इस बार अम्मी जी साथ नहीं है। मैंने सब्र से कहा, ये मैं ही जानती थी मैं कैसे वहाँ रुकी थी। नहीं हया, वो फिर बोलने लगी, प्लीज़ फूफो मुझे मजबूर ना करें। मैं उन्हें कहकर वहाँ से निकल आई। अब मुझे ज़िंदगी का सफ़र अकेले करना था। वापस सऊदीया जाने की तैयारी हो चुकी थी। एक आखिरी बार पाकिस्तान को देखती मैं हमेशा के लिए सऊदीया चली गई। शायद अकेले रहना ही मेरा नसीब था। मैंने अपने माँ बाप को बदवा नहीं दी, क्योंकि मेरे साथ वही हुआ जो किस्मत में लिखा था। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।